Good morning, ma'am. Good Good morning. morning, ma'am. Good Ma'am. morning. Morning. Good morning. Good morning, everyone. Okay, so let me just first explain you what we are going to do today. I have planned that you are left with one last chapter in your physics, that is sound, and most of the part of that chapter has been cancelled. That has been deleted from your syllabus already. I hope you know that. And therefore, I would just like to do the questions, numericals, which are given to you at the end of the exercise for this particular chapter, work and energy. And today we will do the questions, numericals, and different types of concepts related to them. Next week, we will start the new chapter, which is sound. And as I told you that half of the syllabus of that chapter has been already deleted, so it won't be a difficulty for us to complete that within time allotted to us, right? So let's get started. Good morning, ma'am. Good morning. Good morning. The last concept was how do you convert your kilowatt hour in joule? That was the last thing. I already sent you the picture for that how do you convert that. Let me just repeat that again in case some of you didn't get that, so you can understand. Right? So the last topic which was left was how do you convert kilowatt hour into joule? Okay, this was the last thing. Before coming to this point, please remember that all your electrical appliances, most of them, and factories, industries, all these things are actually using a bigger unit of energy, which is kilowatt hour. So अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में इलेक्ट्रिकल हीटर मिलता है, माइक्रोवेव मिलता है, या फिर आयरन मिलता है, so you should understand जो इलेक्ट्रिक आयरन है आपका, उसका यूनिट ये होगा. ठीक है, so ultimately you have to get the answer in kilowatt hour until unless it is not stated that find the answer in joule. ठीक है, जब तक ये कहा ना जाए तब तक आपको उसको किलोवाट आवर में ही रखना है, क्योंकि वही आपकी कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी होती है. लाइक आपके अप्लायंसेस में, होम अप्लायंसेस में, एवरीवेयर, लाइक जो बड़े इंस्ट्रूमेंट्स हैं उन सब में आपकी यही यूनिट यूज होती है. सो इन दोनों के बीच में रिलेशन क्या है, क्योंकि हमने तो जूल पढ़ा है, किलोवाट आवर हमने पावर आने के बाद पढ़ा है. सो इन दोनों के बीच में रिलेशन क्या है, लेट अस जस्ट do that thing. 1 kilowatt hour is actually, it's a combination of 1 kilowatt, which is power, into 1 hour, which is time, right? This is the unit of time, 1 hour, and 1 kilowatt is standing for the power. So let us just open it now. 1 kilowatt hour is actually 1000 watt. 1 hour is actually, if you convert this into SI units, as I told you कि आपको इसको SI unit में convert करना है, तो 1 hour में number of seconds will be 3600, right? So मैम the number आपकी of आवाज बहुत स्लो आ रही है. slow आ रही है, सबको ही कम आ रही है. No, ma'am. No, ma'am. तो आप थोड़ा सा साउंड अपना वॉल्यूम फुल कर ले, क्योंकि ऐसा भी होता है कभी कभी. ओके मैम, नेटवर्क प्रॉब्लम होगा. हाँ जी, हो सकता है आपके में प्रॉब्लम हो. तो अब आप इन दोनों को जब आप मल्टीप्लाई करोगे, सो यू विल सी दैट वी हैव 36 एंड देन 2 and 3, 5 zeros are there. Watt second. ठीक है, watt second is the SI unit. और अगर हम इसको पावर से यूज करते हैं तो आपको ये चीज अगर याद है, पावर एनर्जी अपॉन टाइम होता है. ठीक है, पावर को अगर हम SI यूनिट वॉट में लिखते हैं, एनर्जी को जूल में लिखते हैं, और टाइम को सेकंड में लिखते हैं, तो यहाँ से हम ये इसको इधर ले जाके कह सकते हैं वॉट और सेकंड इक्वल टू जूल. ठीक है, मतलब हम ये कह सकते हैं कि जो जूल है वो वॉट इंटू सेकंड के इक्वल है. बेसिकली इस फॉर्मूले से आया ये. सो इंस्टेड ऑफ दिस वॉट सेकंड वी कैन सिंपली राइट 36 then 5 zeros joule. So this is the relation between 1 kilowatt hour, which is commercial unit of energy, and the joule, which is SI unit of energy. इन दोनों के बीच में ये relation है.
आप इसको और सिंपलेस्ट फॉर्म में लिख सकते हो। नंबर ऑफ जीरोस को हम लिख सकते हैं 10⁵ बुक में ये 3.6 इंटू 10⁶ गिवन है। इट इज अप टू यू, जो भी आपको कंफर्टेबल लगता है आप लिख सकते हो। आई ऑलवेज प्रेफर दिस वन सो दैट डॉट डॉट का डेसिमल का कोई इसमें वो नहीं रहता है। सो ये आप लिख सकते हो इन दोनों के बीच में रिलेशन। ठीक है, I hope this is clear to everyone that in any question, if you are asked with that find the commercial unit of energy, then please remember you have to find the answer in this form. अगर उसको बाद में ऐसा यूनिट में कन्वर्ट करना हो तो आप इसको मान लो 2 किलोवाट आवर आंसर आया आपका, 2 किलोवाट आवर ये आंसर है आपका। तो आपसे पूछा जाए कि ये जूल में कितना होगा, अगर 1 किलोवाट आवर का आपको पता है तो 2 का निकाल सकते हो। दिस इज सिंपल मल्टीप्लिकेशन जो हम मैथमेटिक्स में करते थे। जैसे अगर 1 मीटर स्क्वायर का कॉस्ट कितना है तो 10 मीटर स्क्वायर का कॉस्ट कितना होगा। सिमिलरली यू कैन डू द सेम कन्वर्जन हियर आल्सो। ठीक है, सो आई होप दिस कॉन्सेप्ट इज क्लियर कि जो कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी है, हाउ डू यू कन्वर्ट दैट इनटू एसआई यूनिट ऑफ एनर्जी एंड वाइस वर्सा। मैम लेकिन हाँ जी, हम कब मैम किलोवाट से मैम जूल में कन्वर्ट करेंगे मैम? जब क्वेश्चन में पूछा जाएगा। यस मैम। ठीक है, क्वेश्चन में ऑलरेडी आपको मेंशन्ड होगा दैट फाइंड द आंसर इन किलोवाट आवर एंड जूल। अगर आपको ये लिखा जाए क्वेश्चन में तब आपको उसको जूल में भी निकालना है। जनरली अगर आपको ये नहीं दिया गया है तो आपको ये समझना है, मान लो जैसे एक क्वेश्चन है, मैंने देखा था आपका एक्सरसाइज का, yes, a certain household has consumed 250 units of energy during a month. How much energy is this in joules? ठीक है, सो ये जो उन्होंने दिया हुआ है क्वेश्चन, इसमें उन्होंने स्पेसिफिकली पूछा है हाउ मच एनर्जी इज दिस इन जूल्स। और एक चीज और आपको ध्यान रखनी है, जब भी हाउस होल्ड की बात आती है, कमर्शियल्स की बात आती है, तो आपको आंसर किलोवाट आवर में निकालना है, राइट। सो जैसे ही आपको वो मिल जाएगा आंसर, उसको आप सिंपली जूल्स में कन्वर्ट कर सकते हो। तो ये उसी तरीके से आपको दिया गया है, क्वेश्चन में ये ऑलरेडी गिवन होगा, डोंट वरी दैट मच। अब हम क्वेश्चन आंसर शुरू करते हैं। इसके बाद एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट और है, लेट मी जस्ट टेल यू ब्रीफली। दिस इज क्वेश्चन नंबर 18, एक्चुअली एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 18 है। आई फाउंड दिस इम्पॉर्टेंट इन द सेंस कुछ क्वेश्चंस इसी से रिलेटेड हैं। सो जो आपका फर्स्ट पार्ट है वो ये गिवन है, दिस इज द ऑब्जेक्ट, दिस इज द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द ऑब्जेक्ट, दिस इज द फोर्स, राइट। दिस इज द फर्स्ट केस। सेकेंड केस आपको गिवन है, दिस इज द ऑब्जेक्ट, यहाँ पर आपने फोर्स लगाया है और यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट हुआ है। थर्ड केस इज गिवन टू यू, व्हेन द ऑब्जेक्ट इज हियर, force you have applied in this direction but the displacement is in opposite direction. The question is asked that you have to identify that in which case the work done is negative, positive or zero. आपको ये आइडेंटिफाई करना है। इससे रिलेटेड कुछ प्रैक्टिकल क्वेश्चन। तो सबसे पहले आप ये देखो, इसमें दोनों सेम डायरेक्शन में है, तो वर्क डन आपका जनरली क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, राइट, यही होता है वर्क डन। यस मैम। फोर्स भी सेम डायरेक्शन में है और डिस्प्लेसमेंट भी सेम डायरेक्शन में है। इसका मतलब या तो दोनों पॉजिटिव हैं या दोनों नेगेटिव हैं। जब भी ऐसा केस होता है, प्लस इनटू प्लस और माइनस इनटू माइनस, दोनों ही केस में ओवरऑल आंसर आपका क्या आता है, प्लस। सो दिस केस विल गिव यू पॉजिटिव वर्क डन। ठीक है, जब भी दोनों सेम डायरेक्शन में हो, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट, तब हम क्या कहते हैं कि वर्क डन हमारा क्या है, पॉजिटिव है। ये हमने चैप्टर जब पढ़ा था तब भी इस चीज को रीड किया था, अगर आपको याद है तो अच्छी बात है। whenever force and displacement are in opposite direction, जैसे फोर्स आपका इधर है, डिस्प्लेसमेंट इधर है, इस वाले केस में वर्क डन क्या होता है, याद है किसी को? नेगेटिव। नेगेटिव होता है, राइट। इन दिस केस वर्क डन इज नेगेटिव। अब आप ये सोच रहे हो कि नेगेटिव आया कैसे, सो लेट मी जस्ट एक्सप्लेन। फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, मान लो ये जो फोर्स है ये ऑपोजिट डायरेक्शन में है तो ये माइनस एफ हो गया, और ये पॉजिटिव डायरेक्शन में है तो ये प्लस एफ हो गया। माइनस प्लस हमेशा माइनस होता है, तो ये माइनस एफ एस आ गया, तो नेगेटिव वर्क डन आया आपका। ऐसे ही दूसरा केस क्या हो सकता है
कि फोर्स आपका पॉजिटिव डायरेक्शन में है, डिस्प्लेसमेंट ऑपोजिट में है मतलब नेगेटिव डायरेक्शन में है. अगेन इन दिस केस द वर्क डन इज माइनस एफ एस. FS. दोनों. हाँ जी, कोई डाउट है क्या? मैम और वो ऊपर वाला No, मैम वो ma'am. फोर्स मैम बता और रही वो हूँ मैं. ऊपर वाला. कमिंग टू दैट पॉइंट, रुक जाओ, अभी वहां पर आ रहे हैं. फर्स्ट केस था व्हेन बोथ आर इन सेम डायरेक्शन देन वर्क डन इज पॉजिटिव, व्हेन बोथ आर इन ऑपोजिट डायरेक्शन देन वर्क डन इज नेगेटिव. व्हेन दिस इज द केस, बोथ आर इन perpendicular direction, then the work done is 0. ठीक है, इस केस में वर्क डन हमेशा 0 होता है. मतलब ये कि आपने फोर्स लगाया है आगे की तरफ और डिस्प्लेसमेंट, फोर्स आप ऊपर लगा रहे हो और डिस्प्लेसमेंट इधर हो रहा है, ये वो वाला केस है. तो इस केस में जो वर्क डन है वो 0 होगा. जैसे आपको मैं इसका एक बहुत ही अच्छा एग्जांपल देती हूँ. जैसे प्लैनेट्स जो हैं दे आर रिवॉल्विंग, जो आपका मून है दैट इज रिवॉल्विंग अराउंड द अर्थ, ये आपको पता है. सो उसका जो डिस्प्लेसमेंट है वो ऐसे है और जो ग्रेविटी है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में है. तो मतलब ये कुछ इस तरीके से हो गया. दिस इज द डिस्प्लेसमेंट ऑफ योर प्लैनेट और मून जिसकी भी आप बात कर रहे हो, एंड ग्रेविटी जो अर्थ है आपकी यहाँ पर वो इसको इस तरीके से पुल करती है. ठीक है, ये आपका मून हो गया. यहाँ पर अर्थ रखना चाहिए था मुझे, एक मिनट फिर से बना देती हूँ. दिस इज योर मून. इस रोटेशन में, इस ऑर्बिट में यहाँ पर आपका अर्थ है. दिस इज योर मून. ठीक है, सो अगर ये इस तरीके से रोटेट कर रहा है, इसकी डिस्प्लेसमेंट तो है इस तरफ कॉन्टिन्यूसली, और जो ग्रेविटी है, जो फोर्स है वो इस तरफ है कि नहीं? ये समझ आ रहा है? दिस इज योर अर्थ एंड अर्थ इज पुलिंग मून टुवर्ड्स इटसेल्फ बिकॉज ऑफ द ग्रेविटी. जो पुल है, जो फोर्स है वो इस तरफ है, लेकिन मून का जो डिस्प्लेसमेंट है वो हमेशा एक सर्कुलर फॉर्म में है, मतलब इस तरीके से है. इस केस में ये फोर्स है, ये डिस्प्लेसमेंट है. तो अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आता है जब ये दोनों आपको परपेंडिकुलर दिखते हैं, तब हम ये कह सकते हैं कि वर्क डन आपका 0 है इस केस. ठीक है, ये एक्चुअली वर्क डन का ये कॉन्सेप्ट आता है, जो आप अगर हायर ग्रेड्स में फिजिक्स लेते हो तो वहां पे एक रिलेशन आता है. वर्क डन एक्चुअली होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट इनटू कॉस ऑफ सम थीटा. ठीक है, ये आप 10th ग्रेड में पढ़ोगे, साइन थीटा कॉस थीटा ये सब क्या होते हैं. ये 10th ग्रेड में आपको ट्रिग्नोमेट्री में समझ में आएगा. एक्चुअल जो रिलेशन होता है वर्क डन का वो ये होता है. और जब भी cos 90 आ जाता है, दोनों परपेंडिकुलर होते हैं, तो ये ओवरऑल वैल्यू 0 हो जाती है. इसकी अभी आपको जरूरत नहीं है, लेकिन ये जो रियल कॉन्सेप्ट है ये यहाँ से आया है. इन केस अगर आपको नहीं समझ आ रहा है कि अचानक से कैसे हो गया, तो फॉर्मूला एक्चुअल F into S नहीं होता है, Fs cos थीटा होता है. This is some other unit which gives the work done 0, positive, negative. लेकिन अभी आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए बस इतना समझो कि जब भी दोनों परपेंडिकुलर डायरेक्शन में है देन वर्क डन इज 0, सेम डायरेक्शन में है देन वर्क डन इज पॉजिटिव, ऑपोजिट में है देन वर्क डन इज नेगेटिव. राइट? और ऐसे आपके जो भी एक्सरसाइज के क्वेश्चंस हैं उसमें बहुत सारे क्वेश्चंस तो ऐसे हैं. जैसे एक क्वेश्चन मैं आपको बता देती हूँ. What are the different energy transformations that occur when you are riding a bicycle? जब आप साइकिल चलाते हो तो क्या क्या energy transformations होते हैं? What happens in the case of when you are pushing a huge rock? What happens in this case? Is it a work done? Or if it is, then how? If it is not, then why not? और ऐसा कुछ क्वेश्चन है कि when a light bulb is getting energy, what are the energy changes? सो बहुत सारे क्वेश्चंस तो डायरेक्टली रिलेटेड हैं कि एनर्जी किस किस तरीके से ट्रांसफॉर्म होती है. क्वेश्चन नंबर 3 में जैसे आपको बल्ब से रिलेटेड पूछा है कि व्हाट आर द एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन. सो आपको पता है बल्ब कैसे ग्लो करता है. सबसे पहले आप उसको इलेक्ट्रिसिटी देते हो, राइट? सो द इलेक्ट्रिकल एनर्जी आपने प्रोवाइड की है दैट इज गेटिंग कन्वर्टेड इनटू लाइट एनर्जी, तभी आपको वो ग्लो करता हुआ दिखता है. सो व्हाट आर द एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशंस? जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी है
वो डिपेंड करता है कि अगर आपने कुछ ऐसे जैसे टॉर्च वगैरह लिया है, टॉर्च के केस में हमारे पास सेल होते हैं, उसमें हम डायरेक्टली इलेक्ट्रिसिटी नहीं प्रोवाइड करते। टॉर्च के केस में आप क्या लिख दोगे उसको, जो सेल के अंदर सेल। एनर्जी होती है, विच इज केमिकल एनर्जी। सो केमिकल एनर्जी आपकी लाइट एनर्जी में कन्वर्ट होती है। ठीक है, सो काफी क्वेश्चंस ऐसे हैं जो आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग से, बेसिक कॉन्सेप्ट से समझ में आएंगे। जैसे एक क्वेश्चन है कि व्हाट आर द एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशंस व्हेन यू आर राइडिंग अ बाइसिकल। इसका आंसर आप बताओ, आपको क्या लगता है जब आप साइकिल चलाते हो तो एनर्जी कैसे कैसे चेंज होती है? मैम मस्कुलर एनर्जी मैम। हाँ जी, आपकी मसल्स की एनर्जी चेंज होती है। मस्कुलर एनर्जी किस में चेंज होती है? मैम पता नहीं मैम। साइकिल के पैडल में। अरे उस एनर्जी को बोलते क्या है जो साइकिल मूव कर रही है, उसको क्या बोलोगे आप? मस्कुलर काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी, राइट, सही तो है। When you are applying force, you are using your muscles, that is muscular energy. और साइकिल आपकी मूव करने लग जाती है, that is kinetic energy. और प्रिसाइजली आपकी कॉन्टिन्यूसली साइकिल चलती भी नहीं है, वो बीच में स्टॉप भी होती है, फिर चलती है, फिर स्टॉप भी होती है। और इस एनर्जी को हम क्या बोलते हैं? मैकेनिकल एनर्जी, जो मतलब जिसमें सारी एनर्जी इंक्लूड हो जाते हैं। ठीक है भाई, म्यूट कर लो अगर किसी के घर में बहुत आवाज आ रही है तो। So I hope this kind of questions you can do very well. आपको बस अपनी अंडरस्टैंडिंग लगानी है। डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनर्जीज आर अराउंड यू, लाइट एनर्जी, साउंड एनर्जी, हीट एनर्जी एंड व्हाट नॉट। सो जहाँ पे भी मूवमेंट की बात हो वहां पे आप सिंपली काइनेटिक एनर्जी या मैकेनिकल एनर्जी इज अ बेटर ऑप्शन, वो आप लिख सकते हो। मसल्स यूज कर रहे हो, मस्कुलर एनर्जी लिख सकते हो। सेल्स हो गया या कुछ भी इस तरीके की चीजें हो गई, वहां पे आप केमिकल एनर्जी लिख सकते हो। जैसे फोटोसिंथेसिस है, उसमें भी केमिकल एनर्जी कन्वर्ट होती है, जो सनलाइट है वो केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है। सो ये सारे क्वेश्चंस आपकी अंडरस्टैंडिंग पर डिपेंड करते हैं कि आपको उस कॉन्सेप्ट की कितनी नॉलेज है, आपको कितनी एनर्जीज के बारे में पता है। इसीलिए आई एम सेइंग कि व्हाटएवर वी आर डूइंग ड्यूरिंग द क्लास, प्लीज डू रिवाइज इट एट योर होम, क्योंकि जैसे आप रिवाइज करते हो वो चीजें आपकी और ज्यादा क्लियर हो जाती हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन है कि व्हाट इज द ट्रांसफर ऑफ एनर्जी व्हेन यू पुश अ ह्यूज रॉक। वेरी गुड क्वेश्चन। यू आर ट्राइंग टू पुश अ ह्यूज रॉक, एक बहुत ही बड़ा सा पत्थर है, उसको आप हिलाने की कोशिश कर रहे हो लेकिन इट इज नॉट हैपनिंग, बट स्टिल यू फील टायर्ड, देन व्हाट हैपेंड टू योर एनर्जी? दिस इज द क्वेश्चन। मैम ग्रेविटी। मैम ग्रेविटी कहाँ से आ गया भाई? मैम जितनी उसको एनर्जी चाहिए मैम, मतलब मैम जितनी उसको एनर्जी चाहिए हम धक्का देने के लिए, मैम उतनी एनर्जी हमारे पास है नहीं मैम। ये तो ठीक है, पहला क्वेश्चन तो आपने सही बता दिया कि क्या आप उस रॉक को हिला पाओगे? कैन यू, आर यू एबल टू मूव इट? नो, इट इज नॉट पॉसिबल। तो क्वेश्चन है कि लेकिन इस प्रोसेस में हम थक भी तो जाते हैं, वी आर गेटिंग टायर्ड। हम जब अगर दीवार को धक्का दे रहे हैं या किसी भी ऐसे रॉक को धक्का देते हैं तो नहीं कर सकते, लेकिन थक जाते हैं। सो उस एनर्जी का हुआ क्या? हमने एनर्जी तो लगाई है बहुत ज्यादा, लेकिन हम उसको मूव नहीं कर पाए, वो एक अलग कॉन्सेप्ट है। वी आर पुटिंग आवर एनर्जी, सो व्हाट हैपेंड टू दैट एनर्जी एक्चुअली? जो हमने इतनी एनर्जी मैम वो लगाई है उसको पत्थर के अंदर चली गई। पत्थर के अंदर चली गई। मैम मैम वो अगर एक न्यूटन थर्ड लॉ की वजह से तो होगा ना। न्यूटन थर्ड लॉ क्या की होगा? जितना पावर हमारा लगाएंगे। मैम न्यूटन थर्ड लॉ होगा ना मैम। सेकंड। अच्छा मैम ठीक है, न्यूटन सेकंड जितनी लॉ, थर्ड लॉ, पावर सारे मिक्स हो जाते हैं। ठीक है, थर्ड लॉ। थर्ड लॉ, टू एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। यस मैम, ये वैसे तो ठीक है, जितना हम फोर्स मैंने ये लगाएंगे नहीं उतना पूछा फोर्स है। होगा। हाँ मैम हाँ, एनर्जी जीरो हो जाएगी। अरे नहीं भाई, आप बहुत ज्यादा रनिंग करते हो। आप एक बार खुद करके देखो, ये जब आप करके देखोगे ना तब आपको पता चलेगा। जब आप बहुत देर तक उसको धक्का दिए जा रहे हो, थोड़ी देर के बाद आपको पसीने आने लग जाएंगे और आपकी बॉडी हीट अप हो जाएगी। सो बेसिकली मैम जो पसीना आपकी आएगा ही नहीं मस्कुलर मैम। एनर्जी थी वो हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है, और कुछ नहीं होता। कुछ हो ही कैसे सकता है? आपने इतना बड़ा पत्थर जो लिया हुआ है उसको आप हिला ही नहीं पाओगे, यू कैन नॉट मूव इट एक्चुअली, क्योंकि आपके पास आपकी बॉडी में उतनी एनर्जी ही नहीं है। वी डू नॉट हैव दैट अमाउंट ऑफ एनर्जी। और जो जैसे अभी अमीश ने बताया थर्ड लॉ ऑफ न्यूटन से कि इक्वल और ऑपोजिट रिएक्शन होते हैं, लेकिन उसमें सेकेंड लॉ भी इन्वॉल्व होता है।
वो कब पॉसिबल होता है? जब आपके मास कंपैरेबल हो। लेकिन आपके मास में तो इतना ज्यादा डिफरेंस है, थर्ड लॉ ऑफ न्यूटन वो एप्लीकेबली कैसे कर पाओगे आप? ठीक है, पहले सेकंड लॉ तो वैलिड हो, तो वो केस तो हट ही जाता है। तो बेसिकली कुछ नहीं होता है, रॉक के पास भी कोई एनर्जी नहीं जाती, इट स्टेज लाइक दैट। वॉट एवर एनर्जी यू हैव, वो सारी एनर्जी आपकी एनवायरनमेंट में चली जाती है, आपकी बॉडी हीटअप हो जाती है, आप सांस लेने लग जाते हो जोर जोर से। बेसिकली जो आपकी बॉडी के अंदर जो एटम्स और मॉलिक्यूल्स है वो बहुत ज्यादा फास्टली मूव करने लग जाते हैं, वो काइनेटिक में आ जाते हैं, मोशन में आ जाते हैं, और इस तरीके से आपकी एनर्जी लॉस्ट हो जाती है। और कुछ भी नहीं होता, आपकी बॉडी का टेम्परेचर बढ़ जाता है, हीट एनर्जी प्रोड्यूस होती है, एंड दैट सिंपली गोज इनटू एनवायरनमेंट। मैम अर्थ का मास कितना है? अर्थ का मास कितना है? ये देखो, मुझे वैल्यू तो याद नहीं है अर्थ का मास कितना है, ये आप एक बार चेक कर लो। मैम मुझे रिलेशन पता है, 80 टाइम्स का कुछ 80 का डिफरेंस होता है, 80 टाइम्स का मून और अर्थ के बीच में। इट्स लाइक 1/80। वो शायद एरिया हो या मास हो, मुझे नहीं पता, आप एक बार वैल्यू चेक कर लेना। एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 11, व्हाट इज द वर्क डन बाय द फोर्स ऑफ ग्रेविटी ऑन अ सैटेलाइट मूविंग अराउंड द अर्थ? वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। एक आपको बताना है कि एक सैटेलाइट है जो अर्थ के अराउंड मूव कर रहा है, एंड व्हाट इज द वर्क डन बाय द फोर्स ऑफ ग्रेविटी। ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से वर्क डन कितना होगा? बताइए। एक ऑब्जेक्ट है, एक सैटेलाइट है जो अर्थ के अराउंड रिवॉल्व कर रहा है, ठीक है, और आपको बताना है कि अर्थ का ग्रेविटेशनल पुल, उसकी वजह से वर्क डन कितना होगा। ये अभी किया तो है, यहाँ पर सेम ही तो कॉन्सेप्ट है। This is the earth, this is the satellite moving around the earth, so the satellite is moving in this direction, right? Every time this is moving in a straight direction, और जो फोर्स है वो towards the earth है, फोर्स ऑफ ग्रेविटी, ये इस डायरेक्शन में है, तो दोनों परपेंडिकुलर हैं, इसका मतलब वर्क डन 0 है इस केस में। ठीक है, वर्क डन इस केस में 0 क्यों है? क्योंकि डिस्प्लेसमेंट जो आपका सैटेलाइट है वो हमेशा ऐसे मूव करने की कोशिश कर रहा है, ऐसे, और जो आपका फोर्स है वो हमेशा परपेंडिकुलर डायरेक्शन में लग रहा है, और जब दोनों परपेंडिकुलर होते हैं इसका मतलब वर्क डन क्या होगा? 0। ओके, अनदर क्वेश्चन इज, हाँ, दिस इज अगेन दिस काइंड ऑफ क्वेश्चन इज देयर। एक पर्सन है, ही इज कीपिंग अ बंडल ऑफ हे, मतलब एक बड़ी सी हे, वो भूसे का एक बंडल है, उसको उसने सिर पे उठा रखा है 30 मिनट्स के लिए। मैम क्या ये वाला ये तो वर्क डन है? क्या मैम? देयर इज अ पर्सन, अज्यूम आपने अपने बैग को बहुत, जो कि बहुत हैवी है, उसको आपने सिर पे उठा रखा है, और आप एक जगह पर खड़े हो 30 मिनट्स के लिए। क्या आपने कोई वर्क डन किया है? आप थक तो नो जाते मैम, हैं। क्यों? नो मैम। हम उसमें डिस्प्लेसमेंट नहीं हुआ ना। एग्जैक्टली, उसमें कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं हुआ है। वॉट एवर यू आर कीपिंग ऑन योर हेड, अगर आप एक जगह पर खड़े हो, चाहे आपने कितना भी भारी वजन उठा रखा हो, उस केस को हम वर्क डन में काउंट नहीं करते हैं फॉर योर लेवल। बेसिकली हायर ग्रेड्स में जाके चीजें थोड़ी सी मॉडिफाई हो जाती हैं। अभी तक ये बिल्कुल परफेक्ट बात है कि क्योंकि आपने कोई भी डिस्प्लेसमेंट नहीं किया, हालांकि आपने फोर्स लगाया है उस जो वेट को उठाने में, यू हैव अज्यूम्ड, यू हैव अप्लाइड योर फोर्स, but you have not done any kind of displacement, so therefore in this case work done is 0। अगर आप उसको सारे दिन भी उठा के रखो तब भी, चाहे आप पूरे अच्छे तरीके से थक जाओ तब भी उसको हम वर्क डन नहीं कह सकते हैं in terms of science, right? Okay, this is a numerical question. An electric heater is rated 1500 watt, so आपको पावर गिवन है, इलेक्ट्रिकल हीटर है, ठीक है, तो आप पहले ही समझ जाओ जहां पर भी हीटर दिया है मतलब आपको कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी यूज करनी है, आपको उसी में आंसर निकालना है। ये पहला पॉइंट है, क्योंकि हीटर आपको दिया हुआ है क्वेश्चन में। सो पावर इज 1500 watt, दैट इज गिवन टू यू, एंड द टाइम कंज्यूम्ड इज 10 hours। व्हाट इज द एनर्जी, हाउ मच एनर्जी द अप्लायंस हैज यूज्ड, ये आपको बताना है।
सो आपको फॉर्मूला तो पता ही है, पावर क्या होता है, एनर्जी अपॉन टाइम। तो एनर्जी क्या हो जाएगा, पावर इनटू टाइम, पावर इनटू टाइम, राइट। सो पावर इज 1500 watt and time is 10 hours, but there is some change you have to मैम use here. किलोवाट में करना है ना 1.5। एग्जैक्टली, वेरी Yes, ma'am. गुड। क्योंकि ये आपका कमर्शियल अप्लायंस हो गया है, हीटर है, इसको आपको कमर्शियल यूनिट में यूज करना है। इसका मतलब आपको इस जो ये वॉट दिया हुआ है इसको आपको किलो वॉट में फर्स्ट चेंज करना है। सो 1500 वॉट को जो आप किलो वॉट में करोगे तो कितनी वैल्यू आ जाएगी, हाँ जी 1500 वॉट। हाउ डू यू कन्वर्ट दिस इनटू किलो वॉट, मैम 1.5 किलोवाट। In डिवाइड बाय 1000, यस 1.5 किलोवाट। नाउ लेट अस कैलकुलेट द एनर्जी, क्योंकि अब आपकी सारी वैल्यूज परफेक्ट तरीके से आ गई हैं। किलोवाट में आ चुका है ये, इनटू 10 आवर्स गिवन है आपको, ठीक है। सो लेट अस जस्ट सॉल्व इट, रिमूव द डेसिमल। जब आप डेसिमल हटाओगे दिस जीरो विल गेट कैंसिल, तो आंसर आपका आ जाएगा 15 किलोवाट आवर। दिस इज द एनर्जी यूज्ड बाय योर हीटर। बस हो गया ये आंसर यहाँ तक ये, ठीक है। इज इट ओके दिस क्वेश्चन? यस मैम। मैम। Yes, ma'am. नाउ माय क्वेश्चन इज हाउ डू यू कन्वर्ट दिस यूनिट इनटू जूल्स। अगर आपको कहा जाए कि इसको आपको जूल में कन्वर्ट करना है, देन व्हाट डू यू डू? Ma'am, into 36 into 10 वेरी to the गुड, power 5. वेरी गुड, वेरी गुड। 1 किलोवाट आवर इज एक्चुअली 36 into 10 raised to power 5 joules, ये होता है, ये है 1 किलोवाट आवर। When you have to find for 15 kilowatt hour, so what do? आप 1 to many जा रहे हो। Please remember, mathematics is just a Multiply. backbone of success. इसके बिना आप कुछ नहीं कर सकते, तो इसको आपको मल्टीप्लाई करना है। 15 into 36 into 10 is to power 5, ठीक है। जब आप इसको मल्टीप्लाई करके सॉल्व कर लोगे, तो जो भी आपका आंसर आएगा एक में वो आंसर होगा। ठीक है, ये क्वेश्चन सबको समझ आ गया? Yes, ma'am. Yes, ma'am. चलिए, एक क्वेश्चन है जो अभी हमने रिवाइज किया, उसी पे बेस्ड है। ये सब एक्सरसाइज के क्वेश्चन ही हम रिवाइज कर रहे हैं। व्हाट हैपेंस इन द केस देन अ फ्रीली फॉलिंग ऑब्जेक्ट स्टॉप्स ऑन रीचिंग द ग्राउंड। एक ऑब्जेक्ट है, फ्रीली फॉल कर रहा है, काइनेटिक एनर्जी है उसकी, क्योंकि मोशन में है, वो नीचे आ रहा है, तो उसकी एनर्जी को फाइनली क्या होता है, वो रुक कैसे जाता है, व्हाट हैपेंस, इट मैम इवेंचुअली साउंड एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है। Yes, correct. It convert the kinetic energy getting convert into heat energy and sound energy. ठीक है, so ये बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन था। Let us do one more numerical. Calculate the work done required to stop a car of 1500 kg moving with a velocity of 60 km per hour. ये आपका क्वेश्चन नंबर 17 है, ठीक है। आपको क्वेश्चन में गिवन है देयर इज अ कार जो मोशन में है पहले से, उसकी इनिशियल वेलोसिटी है कुछ, फाइनली आपको उसको रोक देना है, यू हैव टू स्टॉप इट, राइट, दैट इज द क्वेश्चन। आपको फाइनली उसको स्टॉप करना है, देन हाउ मच वर्क इज डन बाय दैट कार। आपको कितना काम करना पड़ेगा उस कार को स्टॉप करने के लिए। सो यू आर गिवन विद मास व्हिच इज 1500 kg। मैम आवाज क्लियर नहीं आ रही है। मुझे तो डबल आ रही है सारी आवाज, पता नहीं। Yes, ma'am. Double ही आ रही है मुझे। यस मैम डबल आ रही है। मैम डबल आ रही है। अच्छा, पता नहीं क्या हो गया। मैम नेटवर्क इशू। कोई बात नहीं, आप एक लाइन को दो बार सुनो अब। सी mass is 1500 kg, that is already given to you. It is moving with the velocity of 60 km per hour, which is the initial velocity, because in the question it is already given to you that you have to stop it, finally you have to stop it, initially it is moving, so initial velocity is given to you 60 km per hour and you have to stop this car. इसका मतलब फाइनल वेलोसिटी क्या होनी चाहिए?
मैम 0। जीरो, बिकॉज यू हैव टू स्टॉप दिस। सो इसका मतलब ये आपकी जीरो होनी चाहिए फाइनल वेलोसिटी, राइट? नाउ मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स व्हाट दे विल डू, इसको सिंपली हाफ mv स्क्वायर करके सॉल्व कर दोगे विदाउट इवन रियलाइजिंग द यूनिट्स आर नॉट करेक्ट। सो प्लीज बी फोकस्ड। ये यूनिट जो आपकी है, दिस इज नॉट SI यूनिट। इसको सबसे पहले आपको SI यूनिट में कन्वर्ट करना है। हाउ डू यू डू दैट? 1 किलोमीटर आर पर आवर इज एक्चुअली 5 अपॉन 18। हाँ हाँ जी, 5 अपॉन 18 मीटर पर सेकेंड, ये कन्वर्जन होता है। 1 किलोमीटर आवर इसके इक्वल होता है। सो इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं 5 अपॉन 18 मीटर पर सेकेंड। दिस इज योर इनिशियल वेलोसिटी, राइट? एंड यू कैन राइट दिस 300 अपॉन 18 मीटर पर सेकेंड। What is the work done in this case? तो इस पूरे केस में वर्क डन क्या होगा? And whenever the question is considering some kind of velocity, तो आपको ये ध्यान रखना है कि velocity जहां पर भी आ जाए, we are talking about kinetic energy. So इस केस में जो वर्क डन है that is equal to kinetic energy. अगर कहीं पर height की बात हो जाए कि आपने ऑब्जेक्ट को यहाँ से यहाँ उठाकर रख दिया, इसमें कितना वर्क डन होगा, तो वो जो वर्क डन है that is basically potential energy. ठीक है? सो ये आपको रिलेशंस ध्यान रखने हैं। वर्क डन दोनों में है। इस केस में वर्क डन है जो काइनेटिक एनर्जी के इक्वल है। अगर आप ऑब्जेक्ट को डिस्प्लेस करते हो तो उस केस में जो वर्क डन है वो पोटेंशियल एनर्जी के इक्वल है। सो व्हाट इज द वर्क डन इन दिस केस, व्हिच इज काइनेटिक एनर्जी, एंड दिस इज हाफ mv स्क्वायर माइनस u स्क्वायर। एक्चुअल आपका यही होता है, ठीक है? लेट अस जस्ट पुट द वैल्यूज। Sorry, mass is 1500, v square, final velocity is 0, so 0 square is 0 basically, minus initial velocity is 300 upon 18। या तो आप इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लो, यहाँ पर डायरेक्ट तो शायद नहीं जाएगा। मैम 16.67। कितना आ रहा आंसर? 16.67। अच्छा 16.67, ओके थैंक यू। टेक द स्क्वायर ऑफ दिस, ठीक है? सो जैसे ही आप इसको पूरा सॉल्व कर लोगे, दिस इज 750 एंड 0 माइनस समथिंग, सो ये आपका आ जाएगा माइनस, टेक द स्क्वायर ऑफ दिस वैल्यू, आपका आंसर माइनस में आ जाएगा, वट एवर द वैल्यू इज कमिंग, जूल्स। ठीक है? द आंसर विल बी इन नेगेटिव। नाउ यू शुड आस्क मी द क्वेश्चन व्हाई द वर्क डन इज नेगेटिव इन दिस केस। वर्क डन नेगेटिव क्यों आया है? बेसिकली यू हैव स्टॉप्ड योर कार। आपने कार को स्टॉप कर दिया है, आपने उसके डिस्प्लेसमेंट को 0 कर दिया है। अब एक तो ये रीजन हो गया। दूसरा ये कि इस क्वेश्चन में आपको ऑपोजिट वर्क डन पूछा था कि जो पहले से मोशन में है उसको आपको 0 करना है। मतलब यू हैव टू डू समथिंग अगेंस्ट दैट मोशन, इजंट इट? 0 करने का मतलब क्या है कि आप कुछ वर्क डन ऐसा करोगे जो उसके बिल्कुल एग्जैक्टली ऑपोजिट होना चाहिए, तभी तो वो कार रुकेगी आपकी। और जहां पर भी एग्जैक्टली ऑपोजिट जैसी चीजें आ जाती है, वहां पे वर्क डन नेगेटिव ही होता है। सो इसका आंसर आपका माइनस में इसको सॉल्व कर लेना, तो ये आपका पूरा आंसर आ जाएगा। ठीक है? काफी क्वेश्चंस तो हमने कर लिए हैं। लेट अस डू वन